Hello, students. How are you? I think you will be fine. Let's move the next topic on the mathematics volume first. And this topic on based integration, double integral. Multiple integral in third chapter, triple integral. So in this chapter we will discuss about the how to calculate the triple integral in form of Cartesian form, spherical form, cylindrical form. So first move in the lecture, I will request you to subscribe my channel for latest update, and if you want to a lecture on double integral, so in the description box I would provided you a link to show the previous lecture. So start this lecture. We will discuss the following coordinate. First, Cartesian coordinate. Second, spherical coordinate. Third, cylindrical coordinate. First, Cartesian coordinate. Cartesian means y-axis, x-axis and z-axis. Take a point O, this, in the space, anywhere, just like we suppose this point in the space. Draw three mutual perpendicular lines through O, and O is origin. यानी कि म्यूचुअल ये आने वाली है, ओ है. इसके हम म्यूचुअल परपेंडिकुलर, यानी कि जो तीनों लाइंस होंगी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी. लाइक मीन्स दिस and this, and these line make 9 pi by 2, यानी कि 90 degree each the adjacent point. So three lines, this is three lines, this x axis, this y axis, this z axis. So the conjugate, they has two and three planes also. First plane क्या है, एक्स वाई, यानी कि हम इस प्लेन को देखें, इस लाइन को, तो यहाँ एक्स वाई, यानी कि ये एक्स वाई प्लेन हो गया. आगे अगर हम इस प्लेन को देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला प्लेन वाई जेड प्लेन होगा, और ये वाला अगर हम देखें तो ये एक्स जेड प्लेन होगा. ये तीन हमारे पास प्लेन हो गए. इस तरह से हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे ये पॉइंट हो गया, या एक्स वाई प्लेन पे है, तो एक्स वाई प्लेन ये हुआ, ये पॉइंट क्यू हो गया, ओ क्यू, ये यानी कि ये ओ एस ओ वाई एंड वाई ओ एक्स. दिस इज द एक्सिस. In this way we draw the coordinate pole, यानी कि Cartesian coordinate. Second, spherical coordinate. In the adjoining figure, join OP, this is O and this is P, and in the previous we considered a point space in P. This is point P, and
ज्वाइन एंड दिस इज ओरिजिन। फिर से भी हम ऐसे एक ड्रॉ कर लेंगे। तो अब देखिए हमने इस पॉइंट को जोड़ दिया, राइट। तो ये हो गया ओ पी, दिस इज ओ पी एंड यह हम डिनोट करते हैं आर से, क्योंकि स्पेयर है। एंड थीटा इज द एंगल, जो ये एंगल है ये थीटा हो गया एंड दिस इज जेड एक्सिस। Phi is the angle between x and OQ. This is point Q. Q यानी कि एंगल दिस इज x एक्सिस, राइट। तो इसके बीच का एंगल हो गया फाई। एंड देखिए ये तो हमारे पास फिगर हो गया। ऐसे इस तरह से हमारे पास ये फिगर ड्रॉ हुआ। हमने इसको ऐसे मिला दिया और ये लाइन ऐसे और ये ऐसे हो गई। हम ये देखिए P एंड Q यानी कि जो हमारा P है ये Q, इसको मैं मिला दिया, राइट। ये हो गया। इन दिस वे वी ड्रॉ द फिगर। सो देन द कोऑर्डिनेट आर थीटा एंड फाई ऑफ ए पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P के लिए यानी कहें तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट है आर थीटा एंड फाई आर नोन एज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। फर्स्ट जेड इज इक्वल टू ओ पी, नहीं पी क्यू, पी क्यू ये जेड है, राइट, इज इक्वल टू ओ टी। ओ टी क्या है, मान लेते हैं ये लाइन, इसको टी अगर मान लें तो, राइट, इज इक्वल टू ओ पी कॉस थीटा। एंड ओ पी व्हाट इज दिस, ओ पी दिस इज नोन एज आर। सो तो ओ क्यू इज इक्वल टू आर साइन थीटा इन द राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ओ आर क्यू। ओ आर क्यू मीन्स O this R this Q this O R Q, this is right angle triangle. So R is equal to x is equal to OR, x is equal to OR, and OR is equal to OQ cos theta and Q is equal to R sin theta and cos phi. So x is equal to R sin theta. Again in the right angle triangle OSQ, यानी कि this is also right angle. Y is equal to OQ sin theta and OQ is equal to R sin theta and sin phi. So in this way we know three coordinates. R is equal, x is equal to R sin theta cos phi, y is equal to R sin theta cos phi, R sin theta and sin phi, and z is equal to R cos theta. Also we know that x is R is equal to x square theta plus y square theta plus z square theta, and phi is a slope between x and y axis. So R is equal to theta, phi is equal to tan inverse y by x. This implies that theta is equal to tan inverse x square plus y square by z. Jacobian, this is the Jacobian I will discuss in my previous lecture complete on the Jacobian, how to find the Jacobian. So in this way and in rapidly I will explain you. R is equal to, देखिए ऐसे कैसे करते हैं, R को हमने लिया एक जो है कि हमने यहाँ x लिया, dx लिया, इसको R से डिफ्रेंशिएट किया, थीटा से किया, फाई से किया, ये लाइन हमें मिल गई।
फिर y को लिया, फिर इसमें भी वो तीनों किए तो ये लाइन मिली। फिर हमने z को लिया, फिर इसमें तीनों किए तो हमें ये लाइन मिल गई। फिर हम इसको जब सॉल्व करेंगे इससे, ये तीनों से, तो हमें मिलेगा r² sin थीटा। और हमें ट्रिपल इंटीग्रल निकालने के लिए जब dx dy dz इज इक्वल जैकोबियन dr d theta d phi, in this way we find the triple integral Jacobian of dx dy dz is equal to r² sin theta dr d theta d phi. So next, cylindrical coordinate system. This is the last system. So cylindrical coordinate system, if PQ, this is P, this is Q, is equal to Z, यानी कि this line Z, and OP is equal to rho, यानी कि OQ यह रो है, and OQ makes angle phi with the x-axis, यानी कि this is angle phi, then Z, rho and phi are called cylindrical coordinate. So in this way we find the x is equal to rho cos phi, y is equal to rho sin phi, z is equal to z because z is equal to z. So rho is equal to x square plus y under root x square plus y square, because we know that rho square is equal to x square plus y square. हमें यहाँ पर केवल रो की वैल्यू निकाली, इसलिए हमने इसका अंडर रूट ले लिया। और tan phi इज इक्वल टू tan इनवर्स x बाई वाई, z इज इक्वल टू z। जैकोबियन ऑफ दिस, यानी कि प्रीवियसली x y z एंड पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ रो फाई एंड जेड। सो फाई इन तीनों में किया, ये मिला। फिर थीटा का एक्स का इन तीनों में किया तो हमें ये मिला। फिर वाई का इन तीनों में किया तो ये लाइन मिली। जेड का इन तीनों में किया तो ये लाइन मिली। अब देखिए ये जो हमारे पास है, इसका हम अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये मिला। तो अब यहाँ से हम आप वैल्यू निकाला जाती है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू क्या मिली, इसको इसका इंटू, इसका इसका इंटू, तो ये यहाँ रो मिला केवल पैसे। फिर जब ये लेंगे तो इसका इंटू, इसका इसका इंटू, तो ये जीरो, ये बचेगा। फिर ऐसे में इसका सब कुछ हो जाएगा तो 2 ही बचेगी। तो यहाँ से रो की वैल्यू मिल गई। तब रो यानी कि जैकोबियन मिल गया। जैकोबियन मिल गया तो अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। इन दिस वे वी फाइंड दीज थ्रीज, यानी कि ये अगर हम इसको इरेज कर दें तो देखिए ये तीनों हमें मिल जाएंगे, राइट। ये तीनों हमें मिल गए, तीनों की वैल्यू, यानी कि इन तीनों का हम इंटीग्रेशन जो दिए गए मेथड हैं उनके हिसाब से करेंगे। सो लेट मूव द क्वेश्चन, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल। या कुछ साफ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन होल टॉपिक। सो ट्रिपल इंटीग्रल, फर्स्ट हम फार्मूला आपके लिए बताते हैं। ट्रिपल इंटीग्रल यानी कि ये दिस इज ट्रिपल इंटीग्रल। इसको हम इसके हम वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, राइट। यानी कि अब यह कोई फंक्शन होगा, ट्रिपल इंटीग्रल 3 उसके प्ले एक्सिस होंगे, तो ये हो गया ds मान लेते हैं, ये है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है, ट्रिपल इंटीग्रल एफ एक्स वाई जेड ds इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू लिमिट x1 इज इक्वल टू a टू x2 इज इक्वल टू b साई x dx एंड सेकेंड y1 इज इक्वल टू फाई 1x y2 लिमिट y2 इज इक्वल टू फाई 2x फाई
एक्स वाई डी वाई, एंड थर्ड लिमिट z1 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, z2 इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई जेड डी एक्स. This is the formula for triple integral. It is very simple. So take a very simple question on the topic to describe the how to find the triple integral. So I will take a simple formula because everyone want to know clearly. So start this solution. So सॉल्यूशन में क्या है हमारे पास, देखिए ये 3 इंटीग्रल है, राइट, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, डी एक्स डी वाई डी जेड. अब देखिए लिमिट, एक्स की लिमिट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 टू लेस देन इज इक्वल टू 1, यानी कि ये एक्स अगर मान लो ये तीनों ऐसे, ये एक्स की एक्स इज इक्वल टू 0 to 1. अब अगर हम वाई देखें, वाई का 1 इज वाई इज लेस देन नहीं ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, यानी कि 1 से 2. आप देखिए थर्ड जेड इज इक्वल टू 2, यानी कि जेड इज इक्वल टू लेस ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3, 2 से 3, एक्स प्लस वाई प्लस जेड. बस हमें यहाँ पर इसकी लिमिट ही लिखनी थी. तो जब हम इसकी लिमिट लिख लेंगे, यानी कि आप देखिए छोटे में से आपको बताते हैं, यहाँ से सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन बन गया है. हमें इसकी लिमिट ही फाइंड करनी थी जो कठिन कार्य था. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3. देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला का जेड, हम पहले से जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे. तो 0 से 1, 1 से 2. अब हमने इसको जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई 2, 2 से 3. अब देखिए हम यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, लिमिट 3x प्लस 3y प्लस 9/2 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z, राइट, सॉरी 2⁴/2. देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 + 3 यानी कि x बचा, ये y बचा. अगर हम पेन चेंज करते हैं तो देखिए ये इससे हमने सॉल्व किया तो x बचा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ प्लस y बचेगा. अब ये प्लस 9/2 माइनस 4/2, तो ये प्लस 5/2 बचा. यानी कि आप देखिए ये अगर हम इन सब को इरेज करके यहाँ पर अगर एक स्टेप लिखें तो क्या मिलता है, देखिए अब सिंपल हो जाएगा. देखिए 0
1 1 2, तो ये क्या x प्लस वाई प्लस 5/2 dx dy। अभी अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई यानी कि इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 5/2 जेड 1 to 2। देखिए यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखते हैं तो 1 रखा, 2 रखा तो 2y माइनस 4/2, ये भी y माइनस 5/2 नहीं प्लस में है सर, माइनस एक्स माइनस 1/2 माइनस 5/2। देखिए ये 10 है, राइट। अगर हम इसको सॉल्व किए तो यहाँ एक्स बचा प्लस, अब देखिए 4/2 प्लस में है यानी कि 14, और ये 516 यानी कि 8/2 बचा, यानी कि हमारे पास क्या बचा तीसरा चीज़ 8/2, यानी कि x प्लस 8/2। देखते हैं देखिए अगर हम अब इस स्टेप लिखें 0 to 1 एक्स प्लस 8/2 dx यानी कि 8 की 4 हो गया, तो अब एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 4x 0 to 1। अगर हम अब रखते हैं तो 1/2 प्लस 4 तो 9/2। दिस इज द आंसर। That's all for this lecture. We will meet the next lecture. So till, thank you for watching this video. I will also tell you that this copies is available on my description box. Thank you for watching this video.